Okay, good afternoon everyone. Last class, how far did we proceed? कहाँ तक क्लास हुआ था, थोड़ा याद करके हमको बोलो. How far did we progress in the last class? अगर किसी को याद है तो थोड़ा देख के बोलो. If you please remember how far was done in the last class, please let me know. अच्छा, जहाँ तक हमको याद है, I think we were studying ecology and ecosystem. I think we were studying ecology and ecosystem. और इकोलॉजी और इकोसिस्टम में हम लोगों का फूड चेन, फूड वेब्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम यहाँ तक हो चुका था. दैट इज़ व्हाट आई रिमेंबर. दैट इज़ व्हाट आई रिमेंबर. सो इन दिस क्लास वी विल बिगिन with the types of ecosystem. We will begin with the types of ecosystem. So please make the heading types of ecosystem. Acha. So the first thing which you need to remember that different kinds of ecosystems are present in our planet. तो हमारे जो ग्रह है, इस ग्रह में तरह तरह की इकोसिस्टम्स या फिर परितंत्र उपस्थित हैं. So what we need to do, we will be studying a few types of land-based ecosystems and we will be studying just one type of aquatic ecosystem. तो हम लोग जो परितंत्र है, कुछ तरह की परितंत्र के विषय में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे और उनमें से कुछ आपका लैंड बेस्ड होगा, मतलब ज़मीनी, और सिर्फ एक ही हम लोग एक्वाटिक इकोसिस्टम, मतलब जो वाटर बेस्ड जो इकोसिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशंस करेंगे. उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशंस करेंगे, या फिर जिसको हम लोग जलीय परितंत्र कहते हैं. अच्छा, नाउ द फर्स्ट थिंग with which we shall begin is the forest ecosystem. The first thing with which we shall begin is the forest ecosystem. Now, for your examination purpose, please note down the type of ecosystems which you will study. Please note down the type of ecosystems which you will study. Write down number one, forest ecosystem. Forest ecosystem. जो लोग हिंदी में नोट कर रहे हैं थोड़ा नोट कीजिए. वन परितंत्र, वन परितंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम. जो हिंदी में नोट कर रहे हैं नोट कीजिए, वन परितंत्र. अच्छा, देन यू कैन राइट डाउन ग्रासलैंड इकोसिस्टम. ग्रासलैंड इकोसिस्टम. जो हिंदी में लिख रहे हैं लिखिए घास स्थल परितंत्र. जो हिंदी में लिख रहे हैं लिखिए घास स्थल परितंत्र, ग्रासलैंड इकोसिस्टम या फिर घास स्थल परितंत्र. उसके बाद लिखिए, उसके बाद नोट कीजिए डेजर्ट इकोसिस्टम. डेजर्ट इकोसिस्टम, मरुस्थल परितंत्र. डेजर्ट इकोसिस्टम या फिर हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं मरुस्थल परितंत्र. डेजर्ट इकोसिस्टम या फिर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मरुस्थल परितंत्र. फिर नोट कीजिए पॉन्ड इकोसिस्टम. पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम. अच्छा, पॉन्ड इकोसिस्टम को आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं जलीय परितंत्र. जलीय परितंत्र, जलीय परितंत्र. अच्छा, so let us begin with your
forest ecosystems. Now you must remember that as you have in every ecosystem a biotic and an abiotic component, likewise in the forest ecosystems also there will be the presence of biotic as well as abiotic components. So let us begin with the discussion of these abiotic components. Now first and foremost, you must remember that whatever land area is present on earth, around 17% about 40% of it is forest. So whatever land area is present on earth, about 40% of it is forest. And the principal abiotic components which are present in the forest include your sunlight, which is the major source of energy, then you have soil, then you have air, then you have the water which is present in the soil, and a variety of minerals and mineral salts which are also obtained from the soil. So I am repeating, the various abiotic components present in a forest ecosystem include your sunlight, which is the major source of energy, then you have soil, you have wind, you have water, then you have the various minerals and mineral salts which are present in the soil. तो कोई भी वन परितंत्र में हम लोग देखेंगे जो निर्जीव उपादान है, तो कोई जैसे दूसरे परितंत्र में होते हैं कुछ निर्जीव उपादान और कुछ सजीव उपादान, तो वन परितंत्र में जो निर्जीव उपादान है वो है आपका सनलाइट, हाँ, सूर्य की प्रकाश जो एक ऊर्जा की स्रोत है वहाँ, और फिर आपका हो गया मृदा मतलब सॉयल, फिर आपका वायु, और फिर पानी, और फिर हो गया आपका जो खनिज पदार्थ है, खनिज लवण है, ये सब हो गया आपका मेनली निर्जीव उपादान. So now coming down to the biotic components, Now as you know, the biotic components represent the living components of an ecosystem. The biotic components represent the living components of an ecosystem. Now these living components we will be further dividing it into consumers and producers and consumers and then decomposers. So the living components we will further divide it into producers, consumers as well as decomposers. So जो सजीव उपादान है एक वन परितंत्र में, उनको हम लोग 3 भाग में बांट के उनका स्टडी करेंगे. एक है आपका जो उत्पादक श्रेणी है, फिर आपका जो कंज्यूमर्स है मतलब जो खादक है, उपभोक्ता, और फिर उपभोक्ता को हम लोग फिर उसको फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स में ब्रेकअप करेंगे. So coming down to the producer component of the forest, so you must remember a forest is characterized by a dominance of trees. So in a forest what we find the dominance of trees, and the trees are characterized by a massive diversity. So in a forest we find that there is a massive diversity of trees. Now very importantly, what we need to understand here that there will be different kinds of plants and trees which are available in the forest. Some may be very tall and giant trees, then you may have some grasses, you may have some climbers, some shrubs, etc., herbs, etc. But all these different kinds of trees, they act as producers. So they trap the sunlight, carry out photosynthesis and prepare their own food. So remember, the principal producer component in a forest ecosystem are your trees. Forests are characterized by dominance and diversity of trees. You will also find different kinds of grasses, you will find different kinds of shrubs, herbs, climbers, etc. Different kinds of trees will be available. तो कोई भी अगर आप वन के परितंत्र को देखेंगे तो वहाँ जो उत्पादक श्रेणी है
तो उनमें आपको मेनली वनस्पति नज़र आएंगे। तो वहाँ तरह तरह की वनस्पतियाँ फॉरेस्ट में हमको नज़र आएंगे। तो कोई मतलब बड़ा पेड़ हो सकता है, तरह तरह की बड़े बड़े पेड़ों का बहुत सारे वैचित्र फॉरेस्ट में नज़र आते हैं। कुछ छोटे वृक्ष हो सकते हैं, घास हो सकते हैं, कुछ आपका क्लाइंबर्स हो सकते हैं। क्लाइंबर्स मतलब जो वृक्ष दूसरा वृक्ष का सहायता लेके ऊपर चढ़ता है, ऐसा क्लाइंबर्स आपको नज़र आ सकते हैं। लेकिन फॉरेस्ट में जो उत्पादक श्रेणी है वो उसका वैचित्र बहुत ज़्यादा रहेगा। नाउ आफ्टर दैट वी शैल कम डाउन टू द कंज्यूमर्स, या फिर जिसको हम लोग हिंदी में उपभोक्ता कहते हैं। अच्छा, नाउ द कंज्यूमर्स इन अ फॉरेस्ट, दे may be your herbivores, or they may be carnivores, or they may be your omnivores. Now herbivores, they feed on the plant materials. Carnivores, they feed upon other animals. And omnivores, they will be feeding upon both plants as well as animals. So these what you can say consumers, we will be breaking them into your primary consumers, secondary consumers, and then टर्शरी कंज्यूमर्स। तो फॉरेस्ट में या फिर वन में हम लोग जो उपभोक्ता श्रेणी को देखेंगे, वो उसमें से कुछ प्राणी ऐसे हो सकते हैं जो शाकाहारी हैं, उनमें से कुछ प्राणी ऐसे हो सकते हैं जो मांसाहारी हैं, और उनमें से कुछ प्राणी ऐसे भी हो सकते हैं जो मतलब पेड़ पौधे और दूसरे पशुओं दोनों को खाते हैं, मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में ओमनीवोर्स कहते हैं। अच्छा, और coming down to the primary consumers in a forest. Now you must remember that in a forest the primary consumers are always herbivores. The primary consumers are always herbivores. They will be your different kinds of, they can include different kinds of mammals like say rabbit, goat, deer, guinea pigs, etc. Now apart from that, there may be different kinds of say insects which are herbivores. There may be different kinds of small birds which are also herbivores. So what we need to remember, that the primary consumers in a forest are always herbivores. They feed on the plant materials. They may be different kinds of small mammals, small and large mammals, like your deer, goats, then you have your rabbits, guinea pigs, rats, etc. Then you can have different kinds of insects which act as herbivores. You can have different kinds of small birds also which act as herbivores. तो जंगल में जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, मतलब पहले स्तर के जो उपभोक्ता श्रेणी है, पहले स्तर के जो उपभोक्ता श्रेणी है, वो आपका मतलब कुछ मैमल्स हो सकते हैं, छोटे मैमल्स मतलब स्तन्यपायी जो जीव है, उसको हम लोग मैमल्स कहते हैं। तो जैसे कि खरगोश, या फिर कुछ गोट्स हो सकते हैं, बकरी, या फिर हिरन हो सकते हैं, या फिर छोटा चूहा हो सकता है, और बड़े बड़े आपका प्राणी भी हैं जो आपका पहला स्तर का जो उपभोक्ता है, जैसे हाथी, एलिफेंट इज़ अ प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि ये सारे जो प्राथमिक स्तर के आपका उपभोक्ता है, ये सभी आपका हार्बीवोर्स मतलब आपका तृणभोजी हैं। ये सारे हार्बीवोर्स हैं, मतलब तृणभोजी, या फिर जिसको आप लोग शाकाहारी कह सकते हैं। नाउ लेट अस कम डाउन टू द सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब दूसरी पौषी स्तर के जो उपभोक्ताएं हैं, दूसरी पौषी स्तर के जो उपभोक्ताएं हैं, जिसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। अच्छा, तो इन द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, these secondary consumers are largely your carnivores. Now the secondary consumers will be mostly feeding upon the primary consumers, and they include your different kinds of foxes, hyena, etc. So remember, the secondary consumers are carnivores. They generally feed upon the primary consumers,
एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉक्सेस, हाइना एट्सेट्रा। तो जिसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं, या फिर दूसरे स्तर के जो उपभोक्ता हैं, वो पहले स्तर के उपभोक्ताओं को भक्षण करके जीवित रहते हैं, और वो ज़्यादातर मांसाहारी होते हैं। जैसे सोचिए कुछ फॉक्स या फिर हाइना, इन जैसे जो पशुएं हैं, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, मतलब दूसरे स्तर के जो उपभोक्ता हैं। Now let us come down to the tertiary consumers. Now these tertiary consumers, they generally feed upon either the primary consumers, or they might also feed upon the secondary consumers. So please remember that the tertiary consumers, they may feed upon the primary consumers, or they may also feed upon the secondary consumers. For example, tiger, lions, etc. तो जो आपका तीसरे स्तर के जो उपभोक्ता हैं, वो जनरली बड़े बड़े आपका मांसाहारी पशुएं होते हैं, जैसे शेर, फिर आपका लायन एट्सेट्रा, बाघ, लायन एट्सेट्रा। और वो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी भक्षण कर सकते हैं, या फिर एकदम प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी भक्षण कर सकते हैं, लेकिन these are generally the larger animals. Now very importantly, in a forest there will also be decomposers. Now what is the role of these decomposers? As you know that when the plants and animals will die in the forest, the plant bodies and animal bodies, there will be containing trapped nutrients in these bodies. So these decomposers, what they essentially do, they decompose the bodies, the dead bodies or the dead body parts of these plants and animals, and release the locked nutrients back into the forest environment. So for this purpose we call them as decomposers, and they include different kinds of bacteria and fungi. तो एक वन के परितंत्र में जो अपघटक हैं, जिसको हम लोग मृतपोषी कहते हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं, उनमें कुछ अणुजीव हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फिर आपका फंगाई, जिसको हम लोग छत्राक कहते हैं। तो ऐसे अणुजीव जो मृत शरीर हैं जंगल में, वो कोई वनस्पति का हो सकता है, वो कोई पशु की हो सकती है, तो इन मृत शरीरों को वियोजन करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, और उनका वियोजन करके उन मृत शरीरों का भीतर जो पौष्टिक पदार्थ रह जाता है, उनको वापस फॉरेस्ट का पर्यावरण में, वन का पर्यावरण में आवर्तित करते हैं, मतलब उनको फिर से रिसाइकल करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट योर फॉरेस्ट ecosystem. So please write down a question. Write a short note on forest ecosystems. Write a short note on forest ecosystems. ठीक है? अच्छा, तो जब भी आप शॉर्ट नोट्स लिखेंगे तो उसमें आपको बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स अलग से मेंशन करना है, एंड व्हाट इज़ द स्पेशल प्रॉपर्टी, यू नीड टू मेंशन दैट ऑल्सो। जैसे अगर आप फॉरेस्ट के बारे में सोचेंगे, तो फॉरेस्ट का स्पेशल प्रॉपर्टी यही है कि फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय dominance and diversity of trees. So you must specify this particular property of forest, and then you will be talking individually about these various components. तो जब भी आप कोई भी परितंत्र के ऊपर कुछ टिप्पणी लिखेंगे, तो एकदम वेरी इंपॉर्टेंटली आप उसका जो स्पेशल कैरेक्टर है, जो प्रधान चरित्र है, उसको अवश्य से लिखिएगा। जैसे अगर आप वन परितंत्र के बारे में लिख रहे हैं, तो वहाँ ज़रूर लिखिएगा कि वन में हम लोग ज़्यादा, मतलब वनस्पति का वैचित्र सबसे ज़्यादा वन में नज़र आता है। फिर उसका बाद जो आपका उनका जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये सब ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और फॉरेस्ट्स हो जाने का बाद हम लोग आएंगे आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स। नाउ वी शैल कम डाउन टू द ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स।
और ग्रासलैंड मतलब जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घास स्थल का परितंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं घास स्थल का परितंत्र. नाउ these grassland ecosystems, you must remember, they occupy around 19% of the global land area. So forest ecosystems occupy about 40% of the global land area. Grassland ecosystems, they occupy around 19% of the global land area. अच्छा. Now these grassland ecosystems, they will also have both abiotic as well as biotic components. तो जैसे हम बोल रहे थे कि घास तल का जो परितंत्र है वो दुनिया का जो ज़मीनी भाग है उनका लगभग 19% घास स्थल का परितंत्र है. तो दुनिया का जितना भी ज़मीनी भाग है उनका उसका लगभग 19% घास तल परितंत्र के अंतर्गत है. और जैसे दूसरी परितंत्र में सजीव और निर्जीव उपादान की उपस्थिति हम लोग देख पाते हैं, तो घास तल परितंत्र में भी हम लोग सजीव या फिर बायोटिक और निर्जीव या फिर अबायोटिक उपादान की उपस्थिति ज़रूर देखेंगे. So starting with the abiotic components of a grassland ecosystem, now it will include again sunlight, because whatever is the ecosystem, as I said previously, you will definitely have sunlight as the major source of energy. Then there will be winds, temperature, various kinds of gaseous components like oxygen, carbon dioxide, nitrogen, etc. Apart from that, soil is a major abiotic component in a grassland ecosystem. And then you will have water, you will have various kinds of mineral materials and mineral salts. So you must remember that in a grassland ecosystem, the major abiotic components are: number one, sunlight, which is the principal source of energy. Then you will have wind, then you will have temperature, different kinds of gaseous components like oxygen, carbon dioxide and nitrogen. Apart from that, soil is a very important abiotic component. Then you have water and various kinds of minerals and mineral salts are also present in a grassland ecosystem. तो दुनिया का जो ज़मीनी भाग है उसका लगभग 19% आपका घास तल परितंत्र का अंतर्गत है. तो यहाँ जो निर्जीव उपादान उपलब्ध हैं, पहले हम लोग उनके बारे में थोड़ा आलोचना करेंगे. जैसे सूर्य का प्रकाश, वो एक ऊर्जा का स्रोत है. फिर आपका वायु में उपस्थित तरह तरह की जो गैसीय पदार्थ हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन. फिर आपका जो उत्ताप, जो टेम्परेचर है. फिर मृदा में उपस्थित जो आपका खनिज पदार्थ, खनिज लवण वगैरह, ये सब भी निर्जीव उपादान के अंतर्गत होगी. और फिर कोई भी तृणभूमि ग्रासस्थल परितंत्र में जल या फिर पानी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्जीव उपादान है. तो एक घास तल परितंत्र के जो निर्जीव उपादान है, हम उसको फिर से दोहराते हैं. आप लोग लिख रहे हैं तो लिख लीजिए. पहला है आपका सूर्य की प्रकाश, फिर है वायु में तरह तरह गैसीय पदार्थ की उपस्थिति जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन. और फिर मृदा में उपस्थित जो खनिज पदार्थ, पानी वगैरह, ये सब लिखना होगा. Now let us come down to the biotic components. Now again you must remember the biotic components, we will divide it into producers, consumers and decomposers. तो एक घास तल परितंत्र के जो मतलब आपका सजीव उपादान है, उनको हम लोग 3 भाग में बांटकर उनके विषय में जानेंगे. उनके विषय में जानेंगे. वो है आपका पहला तो उत्पादक, जिसको हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं. दूसरा आपका उपभोक्ता, जिसको हम लोग कंज्यूमर्स कहते हैं. और तीसरा अपघटक, जिसको हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं. अच्छा, तो पहले हम लोग प्रोड्यूसर कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो लेट अस फर्स्ट बिगिन आवर डिस्कशन विद द प्रोड्यूसर कंपोनेंट. नाउ एज यू नो that a forest was characterized by dominance and diversity of trees, grasslands are characterized by dominance and diversity of grasses,
interspersed with trees. So I'm repeating, grasslands are characterized by dominance and diversity of grasses interspersed with trees. तो ये जो घास तल परितंत्र है, यहाँ का जो मूल उत्पादक श्रेणी है वो आपका घास है। आपको तरह तरह की घास की प्रजाति यहाँ नज़र आएंगे, घास की वैचित्र यहाँ आपको नज़र आएंगी, और इसके बीच कभी कभार एक दो ठो बड़ा पेड़ आपको नज़र आएंगे। तो ये है आपका घास तल परितंत्र के जो मूल उत्पादक श्रेणी, तरह तरह की घास, तरह तरह की घास की प्रजाति और उनके बीच बीच कुछ बड़े बड़े पेड़। तो ये याद रखना है। सो इट इज़ एन इकोसिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय द डोमिनेंस ऑफ ग्रासेस एंड इंटरस्पर्स्ड with one or a few types of trees. Then let us come down to the consumers. As you all know, these consumers may be herbivores or carnivores, and these consumers will further break them down into primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers. तो यहाँ के जो उपभोक्ता श्रेणी है, तो उस उपभोक्ता श्रेणी में श्रेणी का अंतर्गत जो पशु हैं, जो जीव हैं, वो शाकाहारी हो सकते हैं या फिर मांसाहारी हो सकते हैं। और इस उपभोक्ता श्रेणी को हम लोग फर्दर थोड़ा और डिवाइड करके पढ़ेंगे, और जैसे इसको हम लोग फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अच्छा, नाउ कमिंग डाउन टू द प्राइमरी कंज्यूमर्स, या फिर जिसको हम लोग हिंदी में प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। नाउ दीज प्राइमरी कंज्यूमर्स, एज यू ऑलरेडी नो that these are mostly herbivorous. These primary consumers are mostly herbivorous, so they will be feeding upon plant materials. The primary consumers are herbivorous, they will be feeding upon the plant materials. Okay, and these will include your say some larger mammals like cows, like buffaloes, deer, sheep, and some smaller mammals like your rabbits, rats, etc. Apart from that, you will also get different kinds of small insects as your herbivores. Then you may also get different kinds of small birds which are also acting as your herbivores, and thereby are being classified as your primary consumers. So I am repeating, the primary consumers in a forest ecosystem will include your larger mammals like cows, buffaloes, then you have deer, sheep, smaller mammals like rabbits, rats, etc. Then there may be some small insects which will also be herbivorous, and then you may come across some small birds. तो यहाँ जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो आपका कुछ बड़े स्तनपायी जीव हो सकते हैं, जैसे गाय, भैंस, हिरन, एट्सेट्रा, भेड़ एट्सेट्रा, और फिर कुछ छोटे स्तनपायी जीव भी आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो सकते हैं, जैसे खरगोश, चूहे एट्सेट्रा। और इसके अलावा कुछ कीड़े मकोड़े भी आपको मिलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता का हिसाब से, और कुछ छोटे पक्षी जो पेड़ों के फल, बीज, इनका ऊपर जिंदा रहते हैं। Now coming down to the secondary consumers, या फिर जिसको हम लोग हिंदी में द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिसको हम लोग हिंदी में द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। Now these secondary consumers are invariably your carnivores and they will be feeding on the primary consumers. तो ये जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं, ये ज़रूरी है कि वो मांसाहारी ही होंगे, और वो जो प्राथमिक उपभोक्ता है उनको भक्षण करके जिंदा रहते हैं। सो कमिंग डाउन टू द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दिस विल इंक्लूड सम what you can say animals like say snakes, frogs, different kinds of foxes, some slightly what you can say some birds,
which feed on insects etc. हाँ, तो the secondary consumers, remember, they will invariably be your carnivorous and they will be definitely feeding on the primary consumers. For example, a snake, a frog, then you can have foxes, hyenas etc. You can have some birds which feed upon insects. हाँ, so ये जो द्वितीयक उपभोक्ता है ये प्राथमिक उपभोक्ता के भक्षण करते हैं, जैसे सांप, मेंढक, देन आपके तरह तरह की जो फॉक्सेस हैं, फिर कुछ पक्षियां हैं जो आपका इंसेक्ट्स या फिर कीड़े मकोड़ों को खा के ज़िंदा रहते हैं। तो ये होगी आपका प्राइमरी मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर्स, या फिर जिसको हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। नाउ कमिंग डाउन टू द टर्शियरी कंज्यूमर्स। नाउ दीज टर्शियरी कंज्यूमर्स आर जनरली द लार्जर एनिमल्स. They are the larger animals. They may be the larger birds of prey, or they may be some larger carnivorous mammals. For example, say the eagle, then you have the cheetah. Now these are the larger mammals. These are the larger mammals which are classified as your tertiary consumers, which feed upon the secondary consumers. तो ये जो तृतीयक उपभोक्ता श्रेणी के अंतर्गत होंगे, ये ज़रूर किस्म से ये आपका मांसाहारी ही होंगे, और जैसे कि आपका चीता या फिर कुछ बड़ा पक्षी जैसे बाज, ईगल, इन जैसे पक्षियाँ जो मतलब आपका द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता को भक्षण करेंगे। Now coming down to the decomposers. Now as previously discussed, decomposers will be decomposing the dead bodies of these plants and animals, and they will be releasing the trapped nutrients back into the grassland ecosystem, and again they will include different kinds of bacteria and fungi. तो ये जो आपका हम लोग अपघटक कहते हैं, अपघटक कहते हैं, इसमें इसका अंतर्गत कुछ अणुजीव रहेंगे जो मृत शरीरों को वियोजन करके उसके अंदर जो पौष्टिक पदार्थ है उसको फिर आपका घास तल के परितंत्र में वापस करेंगे, ताकि वो एक चक्र के आकार में पर्यावरण से जीव के शरीर में और जीव से वापस पर्यावरण में आ जाए। तो इसका अंतर्गत कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, कुछ फंगस हो सकते हैं। तो ये याद रखना है। तो इसी के साथ ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स भी खत्म हो गया। सो प्लीज राइट डाउन अ क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स मतलब घास तल के परितंत्र के ऊपर एक टिप्पणी लिखिए। घास तल परितंत्र के ऊपर एक टिप्पणी लिखिए। अच्छा, now let us come down to desert ecosystems. Now let us come down to desert ecosystems, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं मरुस्थल के परितंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं मरुस्थल के परितंत्र। अच्छा, हिंदी में लिख लीजिए मरुस्थल परितंत्र, डेजर्ट इकोसिस्टम। हिंदी में लिख लीजिए मरुस्थल परितंत्र। अच्छा, नाउ एज फार एज डेजर्ट्स आर कंसर्न्ड, they occupy around 17% of the global land area. So you must remember, as far as deserts are concerned, they occupy around 17% of the global land area. Now on our planet there can be two types of deserts. One is a hot desert and the other is a cold desert. On our planet there are two types of deserts. One is a hot desert and the other is a what you can say cold desert. But we will be principally discussing about hot deserts. We will be discussing principally about hot deserts. So ये जो मरुस्थल के परितंत्र हैं, दुनिया का जितना भी स्थल भाग है, जो ज़मीनी भाग है, उसका लगभग 17% मरुस्थल परितंत्र के अंतर्गत है। दुनिया का जितना भी स्थल के भाग है, ज़मीनी भाग है, उसका लगभग 17%
मरुस्थल परितंत्र के अंतर्गत हैं। तो ये जो मरुस्थल हमारे ग्रह में उपस्थित है ये दो तरह की हो सकते हैं। एक है आपका हॉट डेजर्ट, मतलब जो उष्ण मरुस्थल है, और दूसरा है जो कोल्ड डेजर्ट जिसको हम लोग शीतल मरुस्थल कह सकते हैं। तो दो तरह की मरुस्थल हमारे पास उपलब्ध है। उष्ण मरुस्थल मतलब जो गर्म है, और शीतल मरुस्थल मतलब जो ठंडा है। लेकिन हम एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ उष्ण मरुस्थल के बारे में ही डिस्कशंस करेंगे। तो यहाँ का जो abiotic components है, coming down to the abiotic components of these desert ecosystems. Now one of the principal abiotic components that you will find here, that is the sand. So deserts are characterized by abundance of sand. Apart from that, there will be very strong sunlight during the day, strong hot winds, and then some very small amount of water and minerals. Very small amount of water and minerals. Temperature is a very vital abiotic factor in the desertic areas, because you know that the environment of the desert is generally dry. It is deficient of water, and daytimes are quite hot in the desert, and night times are cold. Night times are cold. So these are some of the abiotic components present in the desert. तो ये जो मरुस्थल हैं इनका जो निर्जीव उपादान में सबसे पहली उपादान आपको याद आना चाहिए वो है आपका सैंड, मतलब बालू राशि। सैंड मतलब बालू राशि। तो जब भी हम लोग मरुस्थल के बारे में सोचते हैं तो पहली बात जो हमारे मन में आता है वो है वहाँ की उपस्थित बालू राशि। और इसका अलावा सूर्य की प्रकाश जो उस मरुस्थल में दिन के समय में काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो काफ़ी गर्म है। और इसका अलावा है आपका कुछ वायु, जो गर्म वायु वहाँ बहते हैं, और पानी तो काफ़ी कम मात्रा में आपको मरुस्थल में मिलेंगे। और वहाँ का जो पर्यावरण है एकदम सूखा पर्यावरण है। दिन का समय काफ़ी गर्म, रात का समय ठंडा, और बरसात बहुत ही कम। बरसात बहुत ही कम। तो ये है मरुस्थल का जो निर्जीव उपादान। नाउ कमिंग डाउन टू द व्हाट यू कैन से biotic components. Now the biotic components, again we shall break it up into producers, consumers and decomposers. But you must remember that as in a forest you find a wide diversity of life, in a grassland also the diversity is quite noticeable, but in deserts the diversity of life is not much noticeable. Just a few types of plants and animals are existing in the desert. Only those who can tolerate the dry and drought conditions, only they can exist in a desert, not everyone. तो जैसे वन स्थल में, वन भूमि में या फिर घास स्थल परितंत्र में जीव वैचित्र काफ़ी नज़र आती है, लेकिन अगर आप एक मरुस्थल में आएंगे तो वहाँ जीव वैचित्र उतने ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण इतनी सूखा है कि जो जीव उस सूखी पर्यावरण के साथ अडॉप्ट या फिर एडजस्ट कर पाएंगे सिर्फ वही रहेंगे, और जो उस सूखा पर्यावरण का साथ अपने आप को ढल नहीं पाएंगे वो वहाँ नहीं रह पाएंगे। तो कीपिंग दैट इन माइंड, कमिंग डाउन टू द प्रोड्यूसर्स, नाउ रिमेंबर द प्रोड्यूसर्स हियर आर मोस्टली drought resistant cactus. The producers here are mostly drought resistant cactus. And these cactus, as you know, they are characterized by their ability to store water in their stems. The cactus are characterized by their ability to store water in their stems. They have shed their leaves. There are only spines which are present in these cactus. They have shed their leaves and there are only spines. The leaves have been modified into spines. Apart from that, you may find some date palms. Apart from that, you may also find some date palms. तो यहाँ का जो उत्पादक श्रेणी है उसमें आपको ज़्यादातर कैक्टस जैसे पौधे नज़र आएंगे। आप लोग कैक्टस ज़रूर देखे होंगे कि उसमें कोई पत्ता नहीं होती है, सिर्फ स्पाइंस, कांटे होते हैं। और कैक्टस का एक खूबी यह है कि वो अपना स्टेम में, अपने कांड में पानी को स्टोर कर सकता है, क्योंकि मरुस्थल वास्तुतंत्र में
पानी का काफ़ी अभाव है, तो इसीलिए जो पानी भी उपलब्ध है उसको वो अपने कांड में स्टोर करके रख सकता है। इसका अलावा कुछ खजूर जैसे पेड़ भी आपको मिल सकते हैं। कैक्टस को छोड़ के कुछ खजूर जैसे पेड़ भी आपको उपलब्ध हो सकते हैं। अच्छा, now coming down to the what you can say, the consumer component. Coming down to the consumer component, so again you must remember that these consumers, they can be either herbivores or carnivores. These consumers, they can be either herbivores or carnivores, and again we shall break them down into your primary consumers, secondary consumers and tertiary consumers. तो यहाँ का जो उपभोक्ता श्रेणी है वो शाकाहारी या फिर मांसाहारी हो सकते हैं, और ये भी याद रखना है कि वो प्राथमिक उपभोक्ता हो सकते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हो सकते हैं, या फिर तृतीयक उपभोक्ता भी हो सकते हैं. So coming down to the primary consumers, as you already know that these are generally the herbivores, and in a desert the main primary consumer which you can think of is the camel. The camel is known as the ship of the desert. You all know that the camel is known as the ship of the desert. Apart from that, you will find some desertic rabbits. You may also find different kinds of desertic insects which act as primary consumers. तो जो मरुस्थल के परितंत्र हैं वहाँ आपको जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो शाकाहारी है, और जो प्राथमिक उपभोक्ता पहले ही आपका दिमाग में आएगा वो है ऊँट. इसका अलावा आपका कुछ प्रजाति खरगोश के मिल सकते हैं, तरह तरह की कुछ कीड़े मकोड़े मिल सकते हैं, वो भी आपका प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर हो सकते हैं. Now coming down to the secondary and tertiary consumers, as you know that in a desert there is not much of a diversity, so it is very difficult to discriminate between the secondary and tertiary consumers. So we will be discussing them together. They will include some desert foxes, some poisonous snakes, some poisonous lizards and reptiles, and some what you can say preying birds, some birds of prey. So the secondary and tertiary consumers in a desert, they will include some desert foxes, some snakes, then you have some poisonous lizards and some birds maybe which are mostly carnivores. तो यहाँ का जो द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता हैं उसको अलग करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मरुस्थल के वास्तुतंत्र परितंत्र में आपको ज़्यादा वैचित्र नज़र नहीं आएगी, तो इसलिए उसको अलग करना थोड़ा मुश्किल है. इसलिए हम उन दोनों को द्वितीयक खादक और तृतीयक खादक को उत्पादक को हम लोग एक साथ में पढ़ लेंगे. जैसे कुछ सैयार हो सकते हैं जैसे फॉक्सेस, कुछ सांप हो सकते हैं, कुछ गिरगिट जैसे विषधर प्राणी हो सकते हैं, या फिर कुछ पक्षी हो सकते हैं, ईगल बाज जैसे पक्षी जो मरुस्थल में भी उपलब्ध हैं. एंड देन कमिंग डाउन टू द डिकम्पोजर्स, मतलब जिसको हम लोग अपघटक कहते हैं. सो दीज डिकम्पोजर्स अगेन हैव द सेम जॉब, that is to break down the dead bodies, decompose the dead bodies of the animals and plants and release them back into the environment. तो यहाँ के जो अपघटक श्रेणी है उनका वही काम था कि मृत शरीरों को वियोजन करना, वो पशु की शरीर हो या फिर वनस्पति की कोई अंश हो, उसको वियोजन करना और वियोजित करके उसका अंदर जो अटका हुआ जो पोषी पदार्थ है उसको वापस पर्यावरण में आवर्तन करना. अच्छा, now coming down to an aquatic ecosystem. अच्छा, before that just write down a question. Write a short note on desert ecosystem. Write a short note on desert ecosystem. Write a short note on desert ecosystem. तो अगर आप हिंदी में तो ऐसा सोच सकते हैं कि मरुस्थल के परितंत्र के ऊपर एक टिप्पणी लिखिए. मरुस्थल के परितंत्र के ऊपर एक टिप्पणी लिखिए. मरुस्थल के परितंत्र के ऊपर एक टिप्पणी लिखिए.
Now coming down to pond ecosystem. पॉन्ड मतलब जिसको हम लोग हिंदी में तालाब कहते हैं. पॉन्ड मतलब जिसको हम लोग हिंदी में तालाब कहते हैं. अच्छा, ये एक जलीय परितंत्र है. ये एक जलीय परितंत्र है. ये थोड़ा आपको याद रखना होगा कि हम लोग कुछ स्थलज परितंत्र, कुछ स्थलीय परितंत्र के बारे में पढ़े हैं, जैसे वन या फिर आपका घास स्थल, फिर मरुस्थल. और अभी हम लोग एक जलीय परितंत्र के बारे में पढ़ेंगे. वो है आपका पॉन्ड इकोसिस्टम. वो है आपका पॉन्ड इकोसिस्टम. Now, these pond ecosystems, you must remember कि these are characterized by the presence of water. These are characterized by the presence of stagnant water. And because they are characterized by the presence of stagnant water, they are called as lentic aquatic systems. Now, because these pond ecosystems are characterized by the presence of stagnant water, they are called lentic aquatic systems. They are called lentic aquatic systems. तो क्योंकि ये जो परितंत्र है एक तालाब की, वो तालाब या फिर आप झील कह सकते हैं, क्षुद्र जलाधार, झील कह सकते हैं इसे. तो यहाँ का मूल वैशिष्ट्य है कि यहाँ पानी की उपलब्धि रहेंगी और ये पानी प्रवाहमान पानी नहीं है. तो क्योंकि ये प्रवाहमान पानी नहीं है, इसको हम लोग इंग्लिश में लेंटिक इकोसिस्टम्स कहते हैं, या फिर हिंदी में हम लोग इसे सरो परितंत्र भी कह सकते हैं. हिंदी में हम लोग इसे सरो पानी तंत्र भी कह सकते हैं. सरो पानी तंत्र मतलब लेंटिक इकोसिस्टम. Now coming down to the abiotic components, it will include your sunlight, temperature, the various dissolved gases like oxygen and carbon dioxide, different kinds of salts which are dissolved in the aquatic systems, So as far as the abiotic components are concerned, it will include your sunlight, and then you have your temperature, various kinds of dissolved gases, different kinds of salts, important elements like calcium, phosphorus, nitrogen, etc. तो यहाँ का जो निर्जीव उपादान है उसका अंतर्गत आपका सूर्य की प्रकाश हो सकती है, जल में घुला हुआ ऑक्सीजन, जल में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कुछ खनिज पदार्थ हो सकते हैं, कुछ मौलिक पदार्थ जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये भी हो सकते हैं. नाउ कमिंग डाउन टू द प्रोड्यूसर कंपोनेंट. नाउ द प्रोड्यूसर कंपोनेंट्स हियर, they can be your some organisms, some green plants which may be completely submerged or which may be partially submerged in the ponds. And these green plants, we further break them into phytoplanktons and macrophytes. तो ये एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो आज तो क्लास में वक्त भी ज़्यादा बचा नहीं है, तो हम लोग अगले क्लास में इस परितंत्र के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे. सो बिकॉज द प्रोड्यूसर कंपोनेंट ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम नीड्स सम एक्सप्लेनेशन एंड वी डोंट हैव मच टाइम, सो वी विल begin its discussion in the next class. ठीक है. So if you have any doubts, please ask me. Otherwise I will be ending the class. So in the next class I will continue with the pond ecosystem. Okay, so I'll be ending the class.